ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ عبدالرحیم چشتی، بلرام پوری، ممتاز ٹانڈوی، اسلم وارسی، سلطان پوری، امتیاز بستوی کے ساتھ ساتھ مقرر ذیشان واعظ شرعی بیان حضرت علامہ مولانا الشاہ صلاح الدین میاں شیری اکبر پوری کا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیں، بیداری کا ثبوت پیش کر لیں۔ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، آگے بہت ساری کرسیاں خالی ہیں، وہ آگے آ کے بیٹھ جائیں۔ آپ کے علاقے میں مہمان آئے ہیں تو مہمان جو تعصب لے کر جائیں، وہ جہاں بھی جائیں یہ لگے کہ یہ گاؤں میں جلسہ نہیں ہوا۔ ان کے منعقد کرنے کا، انعقاد کرنے کا اصل جو مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ علماء کی گفتگو کو ہم سنیں تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو۔ نعت پڑھنے والا شاعر آئے گا، نعتیں پڑھے گا، آپ محظوظ ہوں گے، لیکن علماء کے بیان کو، ان کے خطاب کو سنیں گے تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا کہ کہاں جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے، غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے، مسجد سے باہر کیسے نکلنا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کہاں جانا چاہیے، کہاں بیٹھنا چاہیے، کہاں رکنا چاہیے، کہاں ٹھہر جانا چاہیے۔ یہ باتیں اس وقت آپ کو معلوم ہوں گی جب آپ علماء کو سنیں گے۔ نعتیں تو آپ کو سننی ہی ہیں، آپ کیسٹوں کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں، شاعر کو بلا کے بھی سن سکتے ہیں، لیکن اسی لیے جلسے سجائے جاتے ہیں اور جلسے کا یہی ایک مقصد ہے۔ بہت زمانے کے بعد آج اس خطیب کو میں دعوت خطابت دینے جا رہا ہوں۔ وہ خطیب کرسی خطابت کو زینت بخشنے والا ہے، جو شریعت کے بھیدوں کا جاننے والا ہے، جو شریعت کے بھیدوں کا جاننے والا ہے، جو قرآنی حکمتوں کا دانائے راز ہے، جو احادیث رسول کا رمز شناس ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو فقہ اسلامی کی گہرائی اور گہرائی پر نظر رکھتا ہے۔ آئیے اس خطیب کا اس جشن عید میلاد النبی میں استقبال کر لیں۔ ایک کامیاب چمکتی ہوئی تقریر کے بعد ہمارے شعراء آئیں گے اور اب نعتیں سنائیں گے، آپ محظوظ ہوں گے، مسکرائیں گے، چمکیں گے۔ پہلے آپ کی، ہماری، ہم سب کی اصلاح ہو جائے۔ نعرہ بلند کیجئے، عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب نوجوان، واعظ شرعی بیان حضرت علامہ مولانا صلاح الدین میاں شیری اکبر پوری کا میں استقبال کرتا ہوں۔ آپ کا جس خانقاہ سے تعلق ہے، حضور فیض الدین میاں شیری، ہماری انجمن کا ایک ایک فرد آپ کی عظمتوں پر قربان ہے۔ جو کام بہت پہلے حضور فیض الدین میاں نے کیا تھا، حضور شمس الدین میاں کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری ہے۔ بڑی با فیض خانقاہ ہے، اس خانقاہ سے حضرت علامہ مولانا صلاح الدین میاں شیری کا تعلق ہے۔ محبت کے ساتھ استقبال فرما لیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ خودکشی کی سلیموں پہ جھول جاتی ہے، وہ خودکشی کی سلیموں پہ جھول جاتی ہے، جو قوم اپنی روایت کو بھول جاتی ہے اور اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدانا فلاک والردین، والصلاة والسلام علی من کان نبی
आदम बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुब्बु अबू बकर व शुक्रहु वाजिब कुल्ले उम्मती आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला नबीउल हरमैन इमामुल क़िबलतैन जद्दील हसन वल हुसैन संसार में सबसे अनोखे सबसे निराले दाई हलीमा की आंखों के तारे बेसहारों के सहारा बेचारों के चारा नाइबे परवरदिगार महबूबे रब्बुल आलमीन सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन रहमतल लिल आलमीन सब्ज़े गुंबद में आराम फरमाने वाले आका व मौला जिंदा नबी पर जिंदा दिली के साथ बावाज़े बुलंद पूरा मजमा पढ़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मादली जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है और हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है और जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने मांगी जन्नत, जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने मांगी जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की कज़ा मांगी है, हम फकीरों ने मदीने की कज़ा मांगी है। हज़रात कुरान मुक़द्दस की वसायत करीमा की तिलावत की है। परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। उसका सीधा सा मफ़हूम तर्जुमा ये हुआ जो चीज मुस्तफा तुम्हें दे वो ले लो और जिससे मना करे बात आ जाओ, मान जाओ, रुक जाओ, खबरदार होशियार हो जाओ। अब अल्लाह ने सारा अख्तियार, सारी अथॉरिटी, सारा अधिकार, सारा पावर मुस्तफा को दे दिया है, नबी को दे दिया है और रब फरमाता है जो चीज मुस्तफा दे वो ले लो और सच तो यही है मुस्तफा ही दे रहे हैं। जभी तो सरकारें अलादत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी और खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब नबी की अता पर कैसा अकीदा होना चाहिए, कैसा ईमान होना चाहिए, कैसा ख्याल होना चाहिए और जिंदगी का सारा दारो मदार ईमान पर है। ईमान सबसे असल है। ईमान कैसा होना चाहिए, ईमान ठीक है तो सुभान अल्लाह क्या बात है और सब कुछ ठीक है, ईमान में कहीं से गड़बड़ी है तो सब बेकार है। सुभान अल्लाह। आओ जरा देखो आकाए करीम सरवरे मदीना रहते कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में है। सरकार ऊँटनी से गुजर रहे हैं, ऊँटनी पर कजावा रखा हुआ है, कजावा गिर जाता है। आका इरशाद फरमाते हैं है कोई तुम में से जो मेरी ऊँटनी का कजावा उठा के दुरुस्त कर दे तो जन्नत का एक महल उसके नाम रजिस्ट्री कर दूंगा, जन्नत उसके नाम बैनामा कर दूंगा,
जन्नत उसके नाम लिख दूंगा। इतना सुनना था। हजरत अबू तलहा गरीब साहब ये रसूल हम दौड़ कर आते हैं, ऊँटनी का कजावा उठा के ऊँटनी के ऊपर रख देते हैं। सरकार फरमाते हैं ए अबू तलहा वादे के मुताबिक तो जन्नत का एक मकान मैंने तुम्हें रजिस्ट्री कर दिया, लेकिन सुनो सुनो, जब तुम मेरी ऊँटनी का कजावा दुरुस्त कर रहे थे तो जिब्रील आके तुमको सलाम अर्ज कर रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तुम मेरी ऊँटनी का कजावा दुरुस्त कर रहे थे तो जिब्रील आके तुम्हारी बारगाह में तुमको सलाम अर्ज कर रहे थे। देखो ये नबी का पावर है, ये नबी को अठालती है। जब तो आला हजरत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सूरज उनके पांव पर थे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूल अल्लाह। अल्लाह ने अपने मुकद्दस हबीब को पूरा अख्तियार दे दिया। चाहे उसे नवाज दे, मुस्तफा जी से चाहे उसे माला माल कर दे, सुभान अल्लाह। और नबी की अता का ये आलम कि नबी जिसे चाहे उसे अख्तियार वाला बना दे। नबी जिसे चाहे उसे अख्तियार वाला बना दे। आओ जरा देखो आक़ाए करीम सरवरे मदीना रहते कल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अख्तियार आप मुलाहिजा फरमाइए। सरकार मदीने शरीफ में जलवा फरमा है। आका फरमाते हैं मेरे साहबा मोता में हक व बातिल की जंग छिड़ गई। सुभान अल्लाह। मदीने से मोता का फासिला 18 से 2000 किलोमीटर का। सरकार है मदीने में, खबर दे रहे हैं मोता की। मोता में हक व बातिल की जंग छिड़ गई है। मेरे बेटे ज़ैद ने सिपे सालारी का झंडा लिया, वो भी शहीद हो गए। अब्दुल्ला अरवाहा ने झंडा लिया, वो भी शहीद हो गए। जाफर तैयार ने झंडा लिया, दाहिने बाजू में दाहिना बाजू शहीद कर दिया गया। बाएं बाजू में झंडा लिया, बायां बाजू शहीद कर दिया गया। झंडे को गर्दन से दाब लिया, उन्हें भी शहादत मिल गई। सरकार फरमाते हैं आओ जरा देखो, आप अंदाजा करें, पहले समझें। 3 सहाबी का तस्करा है। ज़ैद वो सहाबी रसूल हैं जिनको आका ने अपना मुंह बोला बेटा फरमाया है। सुभान अल्लाह। सरकार का जब निकाह हजरत खदीजा से हुआ था तो बहैसियत गुलाम ज़ैद के घर वालों ने नबी की बारगाह में ज़ैद को दे दिया। सुभान अल्लाह। फातह मक्का के बाद जब ये पता चला मेरा बेटा मोहम्मद के गुलामी में रह के जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, दुनिया आज़ादी चाहती है, दुनिया आज़ादी की जिंदगी गुजर बसर कर रही है, मेरा बेटा गुलामी की जिंदगी गुजर बसर। वो लोग आए, ज़ैद के वालिद आए, ज़ैद के चचा आए, ज़ैद के बड़े भाई हैं, आए नबी की बारगाह। कहे मोहम्मद जितना माल मांगो माल देंगे, जितना दीनार मांगो दीनार देंगे, जितना दिरहम मांगो दिरहम देंगे, जितनी असरफिया मांगो असरफिया देंगे, लेकिन मेरे बेटे ज़ैद को आजाद कर दो। सरकार ने जब ये जुमला सुना आका ने फरमाया ज़ैद ये कौन? या रसूलल्लाह ये मेरे बाप। ये कौन? ये मेरे बड़े भाई। ये कौन? ये मेरे चचा। कहा ना दीनार चाहिए, ना दिरहम चाहिए, ना माल चाहिए, ना जर चाहिए, ना सरफियाँ चाहिए, जमीन व आसमान गवाह है, तुम सब गवाह हो। आज से मैं अपने गुलाम ज़ैद को अपनी गुलामी से आजाद कर रहा हूँ। इतना सुनना था। ज़ैद तड़प जाते हैं, अर्ज करते हैं नबी के कदमों पे गिरकर, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले खैर की ठोकर पे न डाल, जिनकी आँखें कहा छोड़ के सदका तेरा। ए मेरे आका सबसे बड़ी आजादी तो आपकी गुलामी है, जिसे आपकी गुलामी मिल गई उसे दोनों जहान में आजादी मिली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद।
सबसे बड़ी गुलामी, सबसे बड़ी आजादी तो आपकी गुलामी है। जिसे आज गुलामी मिल गई उसे दोनों जहान की सल्तनत बादशाहत मिल गई। सरकार जब फरमा रहे थे मोता में हक व बातिल का सिलसिला जंग छिड़ गई है, और बताते बताते सरकार गमगीन हो गई। सहाबा मौजूद हैं, सरकार की रोने जैसी कैफियत हो गई। उसके बाद आका के होठों पर मुस्कुराहट आई। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अभी आप बता रहे थे मोता ने हक व बातिल का सिलसिला छिड़ गया है, जंग हो रही है। मेरे बेटे ज़ैद ने सिपह सालारी का झंडा लिया, वो भी शहीद हो गए। अब्दुल्ला अरवाहा ने झंडा लिया, वो भी शहीद हो गए। जाफर तैयार ने झंडा लिया, वो भी शहीद हो गए। उसके बाद आका रोने जैसी कैफियत हो गई। फिर आप मुस्कुराने लगे। आका फरमाते हैं, सुनो सुनो, इसलिए मैं बता रहा था, अब्दुल्ला को शहादत मिल गई, अब्दुल्ला अरवाहा को शहादत मिल गई, जाफर तैयार को शहादत मिल गई, मेरे बेटे ज़ैद को शहादत मिल गई। और उसके बाद जब कामयाबी का झंडा खालिद बिन वलीद ने सिपह सालारी का झंडा अपने हाथों में लिया है, तो अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह अजीम नसीब फरमाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार मदीने में है, जंग मोता में हो रही है, बताओ ये इल्म गैब नहीं है? जब तो आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या, तुमसे यहाँ हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। नबी जिसे चाहे उसे अख्तियार वाला बना दे। बेशक बेशक। नबी जिसे चाहे उसे अख्तियार वाला बना दे। नबी के गुलामों का पावर देखेंगे। बिहार में एक बुजुर्ग थे, मंगल के दिन उनका इंतकाल हो गया, और जनाजा लेके जब चले तो रास्ते में एक ज़ईफा मिली। उसने पूछा, किसका जनाजा है, किसकी मौत हो गई? तो उन्होंने कहा, पीर शमसुद्दीन का इंतकाल हो गया। कहा, पीर थे और दिन मंगल के दिन मर गए, मरना था तो जुमेरात को क्यों नहीं मरे, मरना था तो जुमा को क्यों नहीं मरे? अल्लाह के वली का जनाजा जा रहा है, जनाजे में सुन रहे हैं, जनाजे में उठ के बैठ गए। कहे, बुढ़िया सान, जा जुमा को मारूंगा, इससे पहले नहीं मारूंगा। नबी जिसे चाहे उसे अख्तियार वाला बना दे। ये नबी का करम है। सिद्दीक़ अकबर को अख्तियार वाला बना दिया, फारूक आज़म को अख्तियार वाला बना दिया, उस्मान गनी को अख्तियार वाला बना दिया, मौला अली को अख्तियार वाला बना दिया। नबी का अख्तियार। आप अंदाजा करें, जंग खत्म हो गई, मोता से एक सहाबी तशरीफ लाए, आका की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं, और अर्ज करने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मोता से आया हूँ, खबरें लेकर आया हूँ। आका हुक्म दे बताऊं? सुभान अल्लाह। मोता से आया हूँ, खबरें लेकर आया हूँ, आका हुक्म दे तो बताऊं? सरकार फरमाते, तुम खामोश हो जाओ, तुम बताओगे या मैं खुद ही बता देता हूँ मोता में क्या क्या हुआ है, कैसे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।